साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। A cheerful morning to each and everyone present over here, respected teachers, judges, your excellency, and my dear friends. As today we all are gathered here to represent our explanations about the topic artificial intelligence, potentials and concerns. So, I am Siddhika Pawar from Saraswati Vidyamandir Inter-College, Jyotirmठ, and I am going to present my explanation about the topic artificial intelligence, potentials and concerns. So, at first, I would like to introduce you about artificial intelligence. As today we live in an era when not a single day of our lives can go without uttering this word artificial intelligence, commonly known as AI, and this branch of computer science shaping our world and the future of humanity. Many companies rely on artificial intelligence, and in this year we all have seen many developments in the technologies dealing with artificial intelligence advancements. So now again I am coming on my topic artificial intelligence, potentials and concerns, and at first I would like to discuss about the topic artificial intelligence potential. So some potential applications and benefits of artificial intelligence are improved healthcare, increased efficiency, enhanced customer experience, environmental sustainability, and intelligent transportation, etc. As you can see in artificial intelligence automation world, so automation can be divided into several parts, but the major parts which I am going to be discussed with you are process automation, intelligent automation, and autonomous systems. So at first, process automation. If we deeply discuss about it, so artificial intelligence can automate repetitive and free human for more strategic and creative works. Artificial intelligence enables autonomous systems like self-driving cars, robots, and many complex tasks without human intervention. Now we are thinking that how can artificial intelligence help in healthcare and finance conditions? So artificial intelligence can significantly enhance in healthcare the way as personalized medicine, diagnosis medicine, virtual nursing assistants, and many medical research, etc. And now artificial intelligence can also significantly enhance in finance conditions the way as such as risk management and most importantly fraud detection and financial planning and credit reporting, etc. These are the applications of AI which I discussed here, and now I would like to discuss about AI ethics. So what are AI ethics? As I discussed about AI ethics earlier, it increased efficiency and interventions. Now I would like to discuss about AI future. As you can see, AI future, how our life becoming in our future. So these are some pictures about our future with AI. So artificial intelligence for making tasks and making decisions without human intervention. Now at last, it concludes that by balancing AI's potential and concerns, we can create a world. राष्ट्रीय में कांटेश विकास मंत्री कृषि में से बुद्धिमत्ता संभाविता और सरोकार तरक्की विचार में उतरना चाहते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे सामान्य रूप से AI या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, एक ऐसी तकनीक विकसित की जाती है जिसके द्वारा मशीनों की सोचने, समझने और सीखने की भावना का
प्रकाश पाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक के रूप में जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। इन्होंने सन 1955 में डार्टमाउथ कॉलेज में एआई की उत्पत्ति की और इन्हीं को एआई के पिता के रूप से भी जाना जाता है। एआई का आजकल बहुत जगहों पर यूज हो रहा है। कई जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सैनिक सेवा क्षेत्र में, सैनिक युद्ध में भी इनका प्रयोग किया जाता है। आजकल यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, जहाँ यूक्रेन अपनी फौज को विकसित कर रहा है और एआई तकनीक से विकसित मशीनों का प्रयोग करके युद्ध लड़ रहा है, चीजों को याद रख सकता है। वहीं मस्तिष्क सिद्धांत मानव मस्तिष्क पर आधारित होता है। आत्मचेतन में यह आत्मा अपने मन से इच्छा बनाकर किसी को एक विचार लेकर कार्य करता है, वहाँ विनाशी होता है। तो लाभ इसके कुछ इस प्रकार होते हैं, मानव अपने जीवन को सरल बनाता है। जैसे इसके कुछ उदाहरण भी हैं, रोबोट, स्वचालित कारें, स्मार्टफोन और नेविगेशन सिस्टम। और जहाँ नुकसान की बात आती है तो एआई में एक नुकसान ये भी है कि अगर इसे गलत हाथों में पहुँच जाता है तो कई सारे नुकसान है कि बेरोजगारी सामने आ सकती है और जिन क्षेत्रों में मानव कार्य कर रहा है उसके विपरीत एआई मानव को रिप्लेस करके उनके स्थान को ले सकता है। और कई वैज्ञानिकों ने यह अनुमान भी लगाया है कि आने वाले समय में एआई के कारण विश्व में लगभग 30 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कई लोगों का रोजगार छिन जाएगा और करने में उसे सक्षम बनाता है कि वह इन सभी दुविधाओं से लड़ सके। धन्यवाद। बहुत महंगे होते हैं और इससे डेटा विकसित होता है, तो जहाँ पर जैसे मानव अपनी सैन्य क्षेत्र में है तो वहाँ पर भी एआई के द्वारा जोड़ा जाता है। और जहाँ पर ऑफिस वगैरह भी वर्कआउट होते हैं और रेस्टोरेंट के आसपास रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है। जादू के समान, जादूगर के जादू के समान, मन की कार्यप्रणाली का समाधान, मन की कार्यप्रणाली का समाधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ये नया विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का ये नया विज्ञान बन गया एक नया मानव समान, बन गया एक नया मानव समान, विवेचन विश्लेषण और नवीन ज्ञान, विवेचन विश्लेषण और नवीन ज्ञान स्थापित कर रहा
हर लोग इसका यूज कर सकते हैं। एल्गोरिदम कि आपने एआई के बारे में बात किया, तो आपने एआई के कोई टूल्स यूज किया है सर? एआई के टूल्स, हाँ टूल्स सर जैसे एआई को हम हर चीज में यूज करें, जैसे कौन 2 टूल्स बताओ मुझे जो हम यूज करते हैं, बहुत मोस्ट कॉमनली करते हैं। जैसे कौन जैसे गूगल को होता है, गूगल एआई असिस्टेंट होता है गूगल क्रोम में। ऐसी टूल्स आप लोग करते हो, जब आप करोगे तो हर जो आजकल एप्लीकेशन है उनमें एक एआई असिस्टेंट होता है। Good morning to everyone. My name is Sachin Mishra from Subodh Prem Vidya Mandir Inter College Corporation. So जैसा कि आपको पता है, आज हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका परिचय देता हूँ। आसानी भाषा NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज एंड स्ट्रॉन्ग एआई और थर्ड सुपर एआई। सो जो हम यूज करते हैं नॉर्मल फॉर्म में वो मीडियम का यानी नॉर्मल हम एआई यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इसके पोटेंशियल्स की बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो पोटेंशियल इसमें आता है वो आता है हेल्थ केयर का। तो हेल्थ केयर में ये हमको कुछ इस तरीके से हेल्प करता है कि ये पहले अर्ली डिटेक्ट करेगा कि हमको कौन सी बीमारी होने वाली है। दूसरा, ये डॉक्टर को डायग्नोसिस करने में मदद करेगा कि हमको क्या बीमारी हो रही है और तब ये हमको अपनी राय देगा कि हमको क्या करना चाहिए इस बीमारी के लिए। दूसरी मैं बात करना चाहूँगा एक्यूरेट प्रिडिक्शन ऑफ डिजास्टर्स। डिजास्टर में एआई 2 तरीके से हेल्प करेगा। सबसे पहले प्रिडिक्शन के लिए, यानी अगर कहीं भी सुनामी आने वाली है या तूफान आने वाला है, एआई उसको सबसे पहले प्रिडिक्ट कर देगा और हमको बता देगा कहाँ तूफान आने वाला है या सुनामी आने वाली है। दूसरी चीज, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, जैसे कई लोग पहाड़ों में मलबे में दब जाते हैं और कई लोग सुनामी में डूब जाते हैं, तो इससे बचने के लिए हम एआई रोबोट्स का यूज कर सकते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए। देन अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में एआई हमको कुछ इस तरीके से मदद करेगा। सबसे पहले हमको ये बताएगा हमारे सॉइल में कितनी फर्टिलिटी है, क्या पीएच लेवल है, हमारी जो क्रॉप है वो हेल्दी है कि नहीं। तब हमको फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह उसमें डालते हैं, तो जिससे क्या होगा हमारी जो क्रॉप होगी वो हेल्दी क्रॉप बनेगी और जो क्रॉप फेलने के चांसेस तो कम होंगे, तो खाद्य वस्तु में महंगाई कम हो जाएगी और इससे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी क्योंकि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा गुड़ बाहर को एक्सपोर्ट करते हैं। देन बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में तो आप जानते ही हैं एआई सपोर्ट करता है पर्सनल लर्निंग को। ये पर्सन को ऐसे ट्रीट करते हैं और हमको हमारे पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर देते हैं और जब ये और डेवलप होगा तो ये टीचर्स को भी ये बताएगा कि किस तरीके से किस बच्चे से ट्रीट करना है, जिससे कि और ये अच्छे टॉपिक लाएगा जिससे कि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। देन बात करते हैं इसके कंसर्न्स की। तो पहला कंसर्न जो आता है वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट का, यानी कि जैसे हम बात कर रहे हैं मिलिट्री में एआई रोबोट यूज होंगे, एआई ड्रोन यूज होंगे, तो जो मिलिट्री के आर्मी पर्सन है उन लोगों की जॉब जाने का खतरा है। फोटोग्राफी एडिटिंग वगैरह एआई के माध्यम से हो रही है, फोटोग्राफर और एडिटर्स की भी जॉब जाने का खतरा है और सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज में एआई वर्क कर रहे हैं तो फैक्ट्री वर्कर्स की भी जॉब जाने का इसमें खतरा हो जाएगा। देन बात करते हैं प्राइवेसी कंसर्न्स की। जब एआई को बनाया जाता है तो उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा फीड किया जाता है जिसमें हमारी प्राइवेट चीज भी हो सकती है, तो वो प्राइवेट चीज अगर लीक हो गई तो ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा हमारे लिए। तो ये है प्राइवेसी कंसर्न, यानी हमारी जो प्राइवेट चीज है उसमें खतरा इसमें बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं डीप फेक की। डीप फेक में क्या होता है, जैसे किसी पर्सन के खिलाफ हमने फेक फोटो वीडियो बना दी एआई के माध्यम से, तो उस आदमी को ब्लैकमेल करके हम पैसों की मांग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इससे बहुत बड़े फेक हो जा रहे हैं और ऐसे हैकिंग भी इससे इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे कि एआई जब से आए हैं तब से जैसे कि आपने मुझे बताया डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, थोड़ा सा मुझे बताएं क्या होता है डीप फेक? सर डीप फेक में ये होता है ना सर, जैसे मेरे को किसी की फोटो मिल गई तो मैंने उसको गलत जगह पे यूज कर दिया उसका एडिटिंग करके, तो फिर मैं उस पर्सन को ब्लैकमेल कर सकता हूँ कि मेरे पास ये ऐसी फोटो है, तो उससे ब्लैकमेल हो जाएगा। तो ये होता है सर डीप फेक। और एक और चीज आपने कही स्पीच रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, कुछ पता है इसके बारे में? चलिए छोड़ो। स्पीच की
स्लाइड में चैट जीपीटी का यूज किया, मतलब पता नहीं आइकन बनाया हुआ था। क्या क्या होता है चैट जीपीटी और इससे क्या कर सकते हैं? सर चैट जीपीटी एक ऐप है, एप्लीकेशन आप कह सकते हैं। सर ये अभी चैट जीपीटी 4 चलता है। सर जब ये आया था तो मतलब ये यूज होता है, जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको उसके आंसर देगा, ये इसके लिए यूज होता है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का इस्तेमाल करेंगे। डिजास्टर में एआई का यूज कैसे करेंगे? डिजास्टर आपदा। सर एआई के माध्यम से जो जैसे सैटेलाइट बर्ड्स हो हैं, सर एआई जो सैटेलाइट है वो ये बताती है कौन कौन सी नदियाँ उफान पे है। सर जैसे कहीं बारिश होगी तो नदियाँ उफान पे आएंगी, तो सैटेलाइट से पता पहले ही चल जाएगा कि आज कौन कौन सी नदियाँ उफान पर आ रही है, तो सुनामी से उसके लिए पहली सेफ्टी बढ़ा दी जाएगी। जनपदीय विज्ञान संगोष्ठी 2024, क्योंकि विभाग का मुखिया अगर अपने इतने अमूल्य समय में व्यस्तम कार्यक्रम को के बीच आपके लिए समय निकालकर यहाँ पहुँचे और सुबह 8 बजे के चले हुए रोड की विकराल स्थिति के बावजूद भी यहाँ पहुँचे, आपका उत्साहवर्धन करने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए, तो मैं इस उद्घाटन अवसर पर अपने जनपद के हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री धर्म सिंह रावत जी का विद्यालय परिवार की ओर से और मैं जिला विज्ञान समन्वय की ओर से बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में जनपद के सबसे बड़े संस्थान शिक्षा विभाग के सबसे बड़े आदरणीय श्री आकाश शाश्वत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक छोटा अनुरोध किया था, मैंने आपकी व्यस्तम कार्यक्रम के बीच समय निकालकर हमारे बीच पहुंचे। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। साथ में हमारे बीच स्टडी के रूप में प्रवक्ता अखबार जी और साथ में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय अखबार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। एक बार पूरा हमारे बीच इस कार्यक्रम की जो सफल संचालन के लिए, संपादन के लिए, निष्पक्षता के लिए हमारे बीच निर्णायक के रूप में हमारे परम आदरणीय श्री मनीष नेगी जी, विभागाध्यक्ष इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक संस्थान गोचर, साथ में व्याख्याता इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदरणीय श्री अर्जुन सिंह रावत जी, राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक गोचर, और प्रवक्ता श्री के.एस. ऋषि राजन मैडम से निवेदन करूंगा कि अतिथियों का कुछ देर का स्वागत, अभिनंदन। एक मिनट है। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी को काफी दे दिया मैडम, धन्यवाद। आदरणीय देव जी, तीनों साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम को आगे फोटो सर फोटो आई, फोटो फोटो आई वाले का हाथ लगाना स्वागत सम्मान के पश्चात में एक बार से आपसे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि और हमारे निर्णायक सभी साथियों सभी आदरणीय से निवेदन करूंगा कि इस सरस्वती
मैं सब परिवार विद्यालय परिवार पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज गौचर में हमारे अभिभावक के रूप में मुख्य शिक्षा अधिकारी रावत जी एवं डायरेक्ट प्राचार्य जी एवं डायरेक्ट पटवारी मैं आपका सहृदय से स्वागत करती हूँ। ब्लॉक स्तर से आए हुए इस गोष्ठी में सम्मिलित समन्वय यहाँ पर विभिन्न विद्यालय से आए हुए हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे एवं प्रभारी जो हमारे शिक्षिका और शिक्षक हैं, मैं उन सभी का यहाँ पर विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अपने प्यारे बच्चों से मेरी एक शुभकामनाएं भी है कि आप इसी प्रकार से अपने विज्ञान के प्रति सचेत होकर अपने नए नए विचार लेकर आप आएंगे और भविष्य में इन विचारों को साकार करके हमारे अच्छे स्थानों पर या अच्छे जो उपकरण है उनका निर्माण करते हुए जनहित में आप लोग कार्य करेंगे। और जो हमारे यहाँ पर निर्णायक गण है, विशेषकर हमारे निर्णायक गण क्योंकि हमारी टीम जनपद में जाएगी, अच्छे बच्चे सेलेक्ट होंगे तो हमारे जनपद चौकी का नाम रोशन होगा। तो मैं सभी आगंतुकों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद मैडम। और इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बात थोड़ा विद्यालय की छात्राओं को स्वागत करने आमंत्रित करता हूँ कि नन्हे बालिकाएं स्वागत डांस तो जो छात्रा है स्वागत के साथ स्वागत डांस प्यार है
सुंदर सा नृत्य बच्चों के द्वारा। शिक्षक साथियों शिक्षक भाइयों के लिए निर्देशन मार्गदर्शन कि किस प्रकार का कार्यक्रम किस प्रकार से होगा, इससे पहले सब संबोधित करें। मैं विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर जानी मैडम और राव का नाम से निवेदन करें कि सर पहली बार विद्यालय कार्यक्रम आए हैं, लोग बच्चों में आए लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम में पहली बार आए, तो थोड़ा सा विज्ञान की तरफ से भी और विद्यालय की तरफ से थोड़ा सा और मैं विद्यालय की ओर से विज्ञान प्रकोष्ठ जनपद समूह की ओर से सभी संसाधनों की ओर से प्राचार्य गाइड का सम्मान करते हुए और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आपका इस प्रकार का मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि इसके बाद 2 प्रतियोगिताएं और बड़ी विज्ञान की आपको पता है बच्चों। इसके बाद अक्टूबर लास्ट में विज्ञान महोत्सव होगा और इसके बाद नवंबर दिसंबर तक इंस्पायर अवार्ड माना की AFPC होनी है। तो
सभी ब्लॉकों के लिए गोचर केंद्र बिंदु है, तो इसलिए प्रतियोगिताएं यहीं पर लगातार में विगत 3 सालों से हर प्रतियोगिता यहीं पर हो रही है। पिछले बार हमने राज्य विज्ञान संगोष्ठी भी कराया, किसी विद्यालय में कराया, तो आगे भी यही होगी। तो विज्ञान महोत्सव इंशाअल्लाह माना, क्योंकि एससीईआरटी इसकी आयोजक संस्था है राज्य में, और एससीईआरटी के द्वारा दायित्व ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप लगातार मॉनिटरिंग और डायरेक्शन करते रहिए इन कार्यक्रम। धन्यवाद। तो ये गंभीर थी राजकीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज गोचर जिला स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री धर्म सिंह रावत जी, इस विद्यालय की कर्मठ प्रधानाचार्य प्रिय सुमन जी, समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, निर्णायकगण एवं प्यारे बच्चों, विज्ञान मात्र एक प्रतियोगिता, मात्र एक विषय नहीं, अपितु सोचने, समझने की, देखने की शक्ति प्रदान करता है। जब हम किसी बात पर तार्किक रूप से चिंतन मनन करते हैं तो निश्चित रूप से वही विज्ञान है। तो आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों के लिए ये संदेश देते हुए कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग देते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को, विचारों को न केवल पढ़ना, अपने उनके विचारों को अपने जीवन में ढालना निश्चित रूप से बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्ति में भी साधक सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करते हुए और निश्चित रूप से आशा करते हुए कि जो हमारे बच्चे हैं वो मेहनत से पढ़ाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बेहतर समाज निर्माण में, बेहतर राष्ट्र निर्माण में अपनी मुख्य भूमिका का निर्वहन करेंगे। इसके साथ ही विद्यालय परिवार का आभार। धन्यवाद। धन्यवाद सर। एक बार तो आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा कि आपने समय निकालकर हमारे बीच पहुँचे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने जनपद चौधरी शिक्षा विभाग के मुखिया, हम सभी के मुखिया, मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद चौधरी परम आदरणीय श्री राम सिंह रावत सर, आपसे निवेदन कि बच्चों का के लिए शुभकामनाएं और हमारे विशेष निर्देशन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए और नेपाल पुनः बताना चाहिए, क्योंकि इस साल की पहली बार विद्यालय का है, लेकिन इस कार्यक्रम में गंधवास का आए थे, लेकिन तुरंत बैठक के लिए, विभागीय बैठक के लिए वापस जाना पड़ा। आज उसकी इस अवसर पर हमारे राज्य श्री शाश्वती इस विद्यालय के प्रधानाचार्य मैडम, विभिन्न विद्यालयों से और अन्य स्थानों से आए हमारे विद्वान निर्णायक, मार्गदर्शक अध्यापक और इस विद्यालय के समस्त अध्यापक, स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जिस विषय से रूबरू हो रहे हैं, भारत के हिसाब से अगर हम देखें दुनिया के देशों के जो विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति की है, उसके तुलनात्मक रूप से अगर भारत को देखें, कुछ क्षेत्रों में हम लोगों ने बहुत प्रगति की है, स्पेस के क्षेत्र में की है, जिसमें काफ़ी ऊपर जो है 2-3 स्थान आते हैं। लेकिन सामान्य विभिन्न क्षेत्रों में जो संचालित होती हैं
उसमें अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी आविष्कार ये बहुत कम हुआ है। हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए बाहर जैसे इजराइल से कैसी खेती हो रही है, वहाँ खेती के मामले में बहुत हाईटेक पहुँच गई। हमारे यहाँ वही परंपरागत चल रहा है। चीन अमेरिका भी डिपेंड हो सकता है। अगर वो अमेरिका को चिप सप्लाई करना बंद कर दे तो अमेरिका की इकोनॉमी पर दिक्कत होगी, उनको सस्ता पड़ता है इसके लिए। लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो पाया ये चीज़ें। उसका कारण क्या है? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आपको कई कहते हैं, हम लोग बच्चों को जब तैयार करवाते हैं, जो हमारा सिलेबस होता है, जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है, जो कोर्स है, ज़्यादातर फोकस करता है याद करने वाला। किताबें होती थी करके करके करने वाला नहीं है। आप याद करके अपनी पर्सन पकड़े याद करते हो, फिर नंबर देख रहे हो, 50% आ गया, 50% आ गया, यही बोल सकते हैं। रैट होता है जब यही दौड़ चल रही है, नंबर की दौड़ चल रही है, परीक्षा पैटर्न भी नहीं बदला है, वही याद करने वाला। तो जो ये नई सोच, नया कुछ करने का दिमाग बढ़ना था हमारे बच्चों में और समझने में, वो नहीं। हम वही परंपरागत वाला उसी को चला है। नई सोचिए, जो हमारे परंपरागत जो हम कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग सोच करके क्यों ये काम ऐसा क्यों नहीं हो सकता करना है। और ऐसा नया करके बहुत कुछ जो है ऐसी चीज़ें हैं कोई जब हमारे वैज्ञानिक जो है घंटों कई दिन बिना खाए पिए बैठ करके लैबों में कब जाके आपको बिजली और ये चाहिए सारे इन्वेंशन ऐसे हुए हैं जो वाइब्रेशन के उसमें देख करके क्या हो सकता है, क्यों ऐसा होता है। ट्रेन आने वाली है आपकी, और अगर वाइब्रेशन में आप ऐसे दिखाएंगे तो हो सकता है उनको पता चलेगा ये तो और नुकसान करने वाली चीज़ है ना। विकास नया सोचने के, नया करने के, जो पुराना है उससे थोड़ा अलग हट करके करने की सोच रखेंगे। निश्चित है कि कुछ ना कुछ नई इन्वेंशन हमारे देश में भी होगी, जैसे जब आप चीज नया होगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे सारे बच्चे जो प्रतिभागी हैं इसमें आ रहे हैं और सारे जो इसमें सहयोग दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और सभी साथियों की ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप हमारे बीच पहुँचे। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो व्यक्तिगत ही लगा, और साथ हमारे बच्चों को, प्रतिभागी बच्चे निसंदेह इनको भी बहुत अच्छा लगा कि हमारे जिले के सर्वोच्च अधिकारी हमारे बीच आए हैं हमारा प्रदर्शन देखने। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात ज़्यादा समय व्यतीत न करते मैं ब्लॉक सभा में काबिल की सर आइए आप और बच्चों का प्रेजेंटेशन आप इसको प्रारंभ कीजिएगा, क्योंकि बच्चे बहुत व्यस्त ब्लॉक के हैं। जितना जल्दी हम इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे तो हमारे बच्चे और मार्गदर्शक शिक्षक बहने सभी शिक्षिका बहनों साथियों से कि सभी बच्चे तभी आएंगे जब उनके प्रमाण पत्र हैं, मेडल हैं, पुरस्कार ट्रॉफियां हैं, तो लास्ट में सारे ब्लॉक एक साथ आएंगे घर भोजन करने के बाद जाएंगे, क्योंकि कार्यक्रम बच्चों का है और बच्चों के लिए होना है। तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी ऐसा नहीं, तो बच्चे चाहे दूर, हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 बजे तक हम सारा काम फाइनल कर देंगे, तो तब तक 1 बजे तक ये निपट जाएगा, 1 से 2 बजे खाना हो जाएगा और रिजल्ट बन जाएगा। तो आपसे मेरा एक बार पूरा निवेदन कि जरूर बच्चों को भोजन कराने के बाद जरूर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जी, परम सम्मानीय मुख्य अतिथि आदरणीय रावत साहब, विशिष्ट अतिथि आदरणीय साहब साहब, उपस्थित सभी गणमान्यों, ज्ञान अधिकार बहनों और प्रिय बाल वैज्ञानिकों, नंदानगर से दिव्यांशु प्रदर्शन के लिए आइए, आपका मंच पे स्वागत है। दिव्यांशु नंदानगर
का विद्यार्थी हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। यहाँ पर हम आज विज्ञान संगोष्ठी 2024 मैं इसमें अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। क्या आपने कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI के बारे में सुना है? इसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता थोड़ा मुश्किल विषय लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल आसान है। हम सभी यह जानते हैं कि धरती पर सभी प्राणियों में से मनुष्य को सबसे समझदार माना जाता है, क्योंकि मनुष्य के पास दिमाग यानी इंटेलिजेंस है, जो जानवरों और पेड़ पौधों के पास नहीं है। मनुष्य ने अपने दिमाग से नई तकनीकी निकालकर अपने जैसे बुद्धिमान कंप्यूटर बना लिए हैं, जो AI पर काम करते हैं, लेकिन उनका कंट्रोल अभी भी मनुष्य के पास ही है। AI तू क्या इंसान बनेगा, AI तू क्या इंसान बनेगा। सॉफ्टवेयर और बोर्ड तो अभी बच्चे हैं, सॉफ्टवेयर और बोर्ड तो अभी बच्चे हैं, उनका बाप बनेगा। AI तू क्या इंसान बनेगा, AI तू क्या इंसान बनेगा। ऑटोमेशन के बढ़ते दौर में, ऑटोमेशन के बढ़ते दौर में तू क्या मिसाल बनेगा। AI तू क्या इंसान बनेगा, AI तू क्या इंसान बनेगा। जिसको एक्टिंग नहीं आती, जिसको एक्टिंग नहीं आती, उसको शाहरुख खान बनाएगा। स्टेरिंग पर भूत जैसा बैठ, स्टेरिंग पर भूत जैसा बैठ, कार ट्रक और ट्रेन चलाएगा। तू क्या बेमतलब मेरी कलम का दुश्मन बनेगा। आपने जो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण दिया, आपने उस पर सेंसर की बात की, तो सेंसर क्या होता है बता दो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आविष्कार किया, मानवता को नई दिशा दिखाई, यांत्रिकी के चमत्कार से लगातार मनुष्य ने अपनी संभावनाएं बढ़ाई। शिक्षकगण, सहपाठी व मेरे भाई बहनों, सुप्रभात। मेरा नाम तेजस्वी गौड़, मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज कुंडबगढ़ है। मेरे विकास खंड का नाम नंदानगर है। जैसा कि आपको
उसको 14 फरवरी 2017 को सक्रिय किया गया था। अब हम दूसरा उदाहरण भारत में आविष्कारित केरल की आइरिस रोबोटिक टीचर की बात करते हैं, जो बच्चों को सब विषय पढ़ाने में सक्षम है और उनके प्रश्न का जवाब देने में भी सक्षम है। हम अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग की बात कर सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वास्थ्य में किया जा सकता है, बिजनेस में किया जा सकता है। ये स्वास्थ्य में कैसे उपयोगी रहता है? अगर डॉक्टर की जगह रोबोट को रख दिया जाए तो वह डॉक्टर से जल्दी कार्य कर सकता है। वह जो डाटा की सुरक्षितता है वो उसको अच्छे से संभाल सकता है। अगर हम इसका बिजनेस में उपयोग कराएं तो बिजनेस में यह सिक्योरिटी, सर्वाइलेंस, प्रोसेस ऑटोमेशन और स्मार्ट ईमेल कैटेगराइजेशन बन सकता है। सेल्फ सर्विस, fraud detection, online customer service and chatbots, voice-based digital assistant, fraud detection और स्पेशलिस्ट स्मार्ट एप्स। एजुकेशन में अगर हम इसका प्रयोग करें तो टारगेट इम्प्रूवमेंट, ट्रायल्स, इनर लर्निंग, ट्यूटोरियल सपोर्ट, चेंजिंग लर्निंग नेचर एंड चेंज टीचर रूल्स। अगर हम सोशल मीडिया में कहें तो सोशल मीडिया में ये हमारे काम आ सकता है। यह दर्शकगण की संख्याओं को बढ़ाने में सक्षम है और यह फोटो की पहचान करने में भी सक्षम है और यह स्मार्टर एडवर्टाइजमेंट, एआई पावर्ड चैटबॉट्स, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। अगर हम गूगल के एआई असिस्टेंट की बात करें तो गूगल का एआई असिस्टेंट जिमिनी, एप्पल का सीरी और अमेज़न का एलेक्सा है। ऐसे कई सहायक हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। एजुकेशन सिस्टम में कैसे हो सकता है? एक रोबोटिक टीचर, अगर किसी मानव की जगह रोबोटिक टीचर को रख दिया जाए तो उसको ज्यादा जानकारी हो सकती है। भले ही वो मानव की तरह भाव सकता, लेकिन उसके अंदर जानकारी बहुत हो सकती है। तो चैटबॉट के बारे में बताइए तो। चैटबॉट और एक गूगल असिस्टेंट है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं जीवन में। ह्यूमनॉइड आपने बताया ना, तो ह्यूमनॉइड और एंड्रॉइड में क्या डिफरेंस है? ह्यूमनॉइड जो मानवकृत है और एंड्रॉइड जो मानव द्वारा बनाया गया है, लेकिन ह्यूमनॉइड जो इंसानों की तरह हाव उनकी तरह बोल सकता है, उनकी तरह सब कार्य कर सकता है। ह्यूमनॉइड्स वो मशीन होती है जो मानव की तरह नहीं दिखती हैं लेकिन काम कर सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पर, और एंड्रॉइड वो मशीन होती हैं जो मानव की तरह दिखती हैं। ठीक है। भारत में एआई का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन था? केरल। Hello everyone, I am Sakshi, class 10 from Block Tharali, and today we are gathered here for science seminar, and our topic is artificial intelligence potential, about a very important and advanced topic in our today's world. Artificial intelligence or AI. AI is a technology that allows machines to learn and think like humans. You have often heard about smart assistants like Alexa or Siri, self-driving cars by Tesla, and even many simple
The main impact of AI would be on job displacement. AI can play a role to displace jobs, leading to various sectors in human labor. Privacy and security. AI regards privacy concerns because it is not good to believe technologies totally, because they are also created by humans and human is an error. Privacy concerns. So AI analyzes our personal data and information. If our personal data will be leaked, we will be in big problem. So it is intelligence risk, privacy concerns. According to a research, due to AI, 85 million people will lose their jobs, but this will be the opportunity to those people who knows about AI, who have intelligence about it, because they made a laws for AI controlation. AI can be also used in sector of education, because in many developed countries like Japan, they started using AI in their education field. बेटा आप YouTube यूज करते हो? YouTube में बताइए AI कैसे काम करता है? YouTube में AI काम करता है, जैसे हम उसमें कोई भी वीडियोस देखते हैं, तो जिस टाइप की वीडियोस हम उसमें ज़्यादा देखते हैं, तो वो उस टाइप की वीडियोस हमको रिकमेंड करता है। जैसे कोई आदमी है, वो जिस टाइप की वीडियोस मतलब कि देखना प्रेफर करता है, तो YouTube उसको वही कंटेंट रिकमेंड करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखे। ओके, बहुत अच्छा। आप क्लास 10 की स्टूडेंट हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी जो पढ़ाई करती है, प्रिपरेशन करती है, उसमें AI का क्या यूज़ करते हैं? सर मेरी पढ़ाई में AI मेरी बहुत हेल्प करता है। मैं मतलब ChatGPT जो ओपन AI द्वारा बनाया गया है, उसका यूज़ करती हूँ आंसरिंग माय डाउट्स, मतलब वो मेरे डाउट सॉल्व करके मेरे को देता है। और बहुत सारे और ऐसे ऐप्स हैं जिनमें मतलब AI फीचर्स हैं, जैसे कि कभी मुझे कोई फ्लो चार्ट समझना है, तो उसके मतलब कोई ऐप्स हैं जिनमें मैं उसको मतलब इनपुट करती हूँ, तो वो मतलब कि उस चैप्टर के में वो मेन टॉपिक्स बता देता है और उनको आसानी से मुझे समझा देता है, तो इससे मेरे डाउट्स भी बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। इंडस्ट्री में AI का यूज क्या है? AI का यूज है मतलब कि इसका यूज है ऐसी मशीन्स डेवलप करना जो कि मतलब कि ज़्यादा समझदार हो और हमारे क्वेश्चन का आंसर करना मेनली हमारे काम